Hi riders, today we have Rupa with us. She is head of marketing and HR in a Japanese multinational. She is a fitness enthusiast plus has been associated with the Let's Ride Academy for almost more than 3 years now. It was with us where she started her motorcycle journey and she has ridden her motorcycle more than 30,000 kilometers. So Rupa, how are you feeling today? Thank you so much for this wonderful, wonderful introduction. It's my pleasure to be here. And of course, as I said, I'm feeling like a celebrity today. You are one of the showstoppers of the academy that we have. Thank you. Means a lot. Portraying the biker life in all of its zest and zeal. My first question will be for you. मोटरसाइकिल का सबसे पहला ख्याल जहन में कब आया? सबसे पुरानी मेमोरी बचपन की, किसी फैमिली मेंबर के साथ, कोई मैगजीन में फोटोग्राफ, किसी को चलाते हुए देखा, सबसे पहला दिमाग में रिकलेक्शन मोटरसाइकिल का कब? Amit sir, I'm still trying to figure out the answer to this question कि बाइक चलाने का सपना कब आया. शायद I was a born rider. इस सपने के साथ मैं पैदा हुई थी. I would have seen this dream in my mother's womb that I want to ride a bike. I belong to a very small town, छोटे से गांव से. वहाँ पे मोटरसाइकिल क्या, साइकिल मैंने चलाते हुए कभी किसी लड़की को नहीं देखा. इनफैक्ट आई हैड अ ड्रीम बट आई डिडंट नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल. Okay. So first I learned bicycle. I still remember I was around in my 20s when I learned bicycle and छोटे छोटे बच्चे पार्क में खेलते थे and they used to say साइकिल वाली आंटी आ गई, साइकिल वाली आंटी आ गई. So that's my first memory with two-wheelers. That's how I learned two-wheeler balancing that I talk about. And then one fine day it was raining. हमारे पास एक बाइक थी पल्सर. Of course, men used to ride, or family men used to ride that bike. And it was raining. Streets, as you know, गुड़गांव का हाल, पानी से पूरी street filled है. And I don't know, मेरे अंदर वो confidence था कि मैं ये बाइक को चला लूँगी. Because as I told you, it was a dream. I used to dream about riding a bike. When I say dream, literally, I used to close my eyes and I used to dream about flying. I knew gear, everything, though I never touched that bike. And street में I remember शायद जुलाई ही होगा because the way गुड़गांव it is. So I'm assuming बारिश जुलाई का महीना होगा. पूरी स्ट्रीट्स पानी से भरी हुई हैं. मैंने फर्स्ट गियर डाला एंड वो वाटर में स्प्लैश हुआ. मैंने सेकंड गियर डाला, वाटर और तेज से स्प्लैश हुआ. सो दैट इज माय फर्स्ट टच एंड फील विद बाइक. आफ्टर दैट नोबडी अलाउड एंड आई फॉरगॉट आई कैन ड्राइव. एंड देन वन फाइन डे आई सॉ योर एड इंस्टाग्राम. आई वेंट देयर. It was Women's Day, if I'm not wrong. Women's Day से एक दिन पहले सैटरडे का दिन था. डेमो क्लास थी जिसमें आप आए थे और आपके साथ कुछ और राइडर्स आए थे. मुझे बहुत बहुत क्लियरली याद है वो दिन क्योंकि डेमो क्लास के बाद अगले दिन संडे को एक राइड थी. आप और आपके साथ जो कुछ लोग आए थे उन्होंने वो राइड ज्वाइन करी एज पिलियंस दैट डे. एंड आई हैव अ फ्यू मेमोरेबल फोटोग्राफ्स एंड अ वीडियो ऑफ दैट डे ऑल्सो. और फिर उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है आपकी मोटरसाइकिल जर्नी स्टार्ट हुई है और इस बात को इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 साल हो चुके हैं. I must compliment your memory, Amit sir. So many women you have trained and still you remember that incident. But yes, of course, for me, that was my life-changing moment. Because अभी तक की जो स्टोरी थी ना, वो था मुझे करना है, मैं करना चाहती हूँ, I want to do it. And that day, when I sat as a pillion, I said, I will do it. And it's all happened because of people like you who are ready to show us the path. प्रोफेशनली मोटरसाइकिल सीखना है और खुद ही एक्सपेरिमेंट करके नहीं चलाना सीखना है, ये कब जहन में आया कि हाँ मुझे प्रोफेशनली सीखना चाहिए या मैं हिट एंड ट्रायल से खुद भी सीख सकती हूँ? That was a workshop. अच्छा. Workshop changed my mind because I knew छोटा मोटा पहला सेकंड गियर में मैं चला लेती थी बाइक. It was not like this. But the day I attended your workshop, that day I realized biking is a skill. It's a skill. Is not the same way जो दूध वाला चलाता है. I never wanted to ride like that. I wanted to ride like a professional, a responsible rider with all skill set. So I guess that your workshop, first day I realized motorcycling is a skill. हिंदुस्तान में फेटैलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं टू व्हीलर्स पे. और हमको कुछ लोगों ने रीच आउट किया कि मोटरसाइकिल चलाना प्रोफेशनली कोई नहीं सिखाता है और वुमेन कम्युनिटी के लिए तो कोई भी काम नहीं कर रहा है उस चीज़ को लेके. तो हमने उस चीज़ को लेके अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था एकेडमी का.
और उसलिए हम डेमो क्लासेस करते थे कि लोग समझ सकें कि मोटरसाइकिल को प्रोफेशनली चलाना एक साइंस है। बाइक पे बैठने से लेके उसको उठाने से लेके उसको रोकने से लेके हर चीज़ की एक टेक्निक और एक साइंस है, ना कि बस आप बिना समझे बिना देखे कुछ भी कर रहे हो। आपकी बॉडी की पोजीशन क्या होगी, आपके ब्रेक कब लगाओगे, कौन सा ब्रेक लगाओगे, गियर शिफ्टिंग सही आरपीएम पे होने चाहिए, विजन कैसे होगा, राइडिंग गियर आपको कौन कौन सा ज़रूरी है मोटरसाइकिल चलाते हुए पहनना। तो वो चीज़ों को हम वी वांटेड टू स्प्रेड द वर्ड, अवेयरनेस बढ़ाने के लॉजिक से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और फिर समझ आया कि हाँ, इट इज़ मच नीडेड। कोई भी करा नहीं रहा है और एकदम बेसिक ग्राउंड जीरो से तो कोई भी नहीं करा रहा है। तो उसको सोच के ये आइडिया आया और उसको हमने फिर काफ़ी इवॉल्व भी हुआ है पिछले 3 साल में ये आइडिया और कॉन्सेप्ट। आज का ट्रेनिंग फॉर्मेट आज के 3 साल पहले ट्रेनिंग फॉर्मेट से काफ़ी फ़र्क है। और जब हम देखते हैं कि आप जैसे लोग जिन्होंने 3 साल पहले सीखा है आज अलग अलग अक्लेम्स ले रहे हैं, इंडिपेंडेंटली राइड कर रहे हैं, सोलो कॉन्फिडेंट राइडर्स बन गए हैं इन द कम्युनिटी, तो बहुत खुशी मिलती है और बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलती है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट कि हाँ, आज से 3 साल पहले जो एक कदम, एक आइडिया, एक सोच ऑन पेपर थी, आज हम देख रहे हैं कि उसके फ्रूट्स सबको मिल रहे हैं और एज अ कम्युनिटी हम लोग ग्रो कर रहे हैं। Absolutely, Amit sir. I would like to say just one thing. It's not just about riding a bike. You know what you guys are doing? You are strengthening a very important part of society. So it's not just bike riding. What you are doing, आप empower कर रहे हो इस जनरेशन को और इस जनरेशन को हैंडल करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन को. So today when my son sees an empowered woman who's riding a bike, he's ready to handle the next generation of empowered woman. So that's what you are doing. When your 15-year-old son sees his mother riding a bike, Absolutely. and that is something very normal in his household, Right. so he will always encourage and support the woman that he will have in his life in the future. Absolutely. और अपने आसपास भी सोसाइटी में हमेशा प्रमोट करेगा सेफ राइडिंग, और दैट इज हाउ वी ग्रो। कभी आपको अपनी फैमिली से कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला कि ये क्यों करना है, क्या ज़रूरत है सीखने की, मोटरसाइकिल क्यों ही चलाना है, गाड़ी में तो हम बहुत कंफर्टेबल रह सकते हैं, ये रिस्क क्यों लेना है? सबकी फैमिली में होता है अमित सर. यू नो इन स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन है. लड़कियां डॉल से खेलेंगी, बॉयज कार से खेलेंगे. बिल्कुल. लड़कियां पिंक कलर की डॉल से खेलेंगी, बॉयज ब्लू कलर से खेलेंगे. यू नो हमारी वुमेन सोसाइटी अलग है, मेन सोसाइटी लड़कियां स्कूटी चलाएंगी, मेन बाइक चलाएंगे. स्टीरियोटाइप्ड है या वो एक लाइन है बीच में. तो ऑफ कोर्स द मोमेंट ये ओनली नॉट फॉर वुमेन, आई वुड से अगर मेन भी शायद कल डॉल के साथ खेलेगा उसे भी पूछा जाता है कि व्हाई यू आर प्लेइंग विद, और या लड़का स्कूटी चलाता है उसको भी पूछा जाता है पिंक कलर की शर्ट पहनता है तो भाई मतलब ठीक है. सो ये सोसाइटी में है, यू नो, और सोसाइटी एज ऑफ नाउ इज नॉट जेंडर न्यूट्रल. सो सेम थिंग मेरे साथ भी हुई. आई स्टिल रिमेंबर द डे आई बॉट माई बाइक. मेरा पड़ोसी आके मुझे बोलता है, we live in Haryana, so most of the people, you know, Haryanvi, and he was in a typical Haryanvi tone. मैडम जी ये बाइक क्यों ले आए, स्कूटी ले आते, क्या क्या मिलेगा बाइक चला के. एंड ही ऑल्सो हैड अ बाइक. मैंने कहा अंकल आपको क्या मिलता है बाइक चला के, वही चीज़ मुझे भी मिलेगी. तो एंड देन यू नो ही डिडंट से एनीथिंग, ही वेंट. सो ऑफ कोर्स देयर वाज अ रेजिस्टेंस. But now I see, you know, after 3 years, the kind of our women community is growing day by day. I see a lot of acceptance on road, a lot of appreciation of road. We are inspiring, I guess, the next generation or this generation, women around us, men around us. This society is becoming more acceptable towards women rider today. So today when I go on road, and 3 years back when I used to go, there's a difference. You know, when 3 years back एक क्वेश्चन होता था why bike, and today wow bike. So this why has become wow in a short span of 3 years. I see that difference. I think अब अगला ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि वुमेन राइडर्स एक एक्सेप्शन नहीं, एक रूटीन होना चाहिए. Agree. आप जैसे
हमारे मेल काउंटर पार्ट्स अपने हर एक्टिविटी के लिए मोटरसाइकिल यूज करते हैं. इनफैक्ट वी एनकरेज नाउ राइडर्स फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम द अकेडमी, कि आप हर चीज के लिए मोटरसाइकिल से जाओ. Right. आपको शॉपिंग करने जाना है, आप मोटरसाइकिल से जाओ. आपको स्कूल कॉलेज ऑफिस जाना है, आप मोटरसाइकिल से जाओ. क्योंकि जब एक लड़की अपने ऑफिस जाती है, अपनी मोटरसाइकिल का हेलमेट और जैकेट अपनी टेबल पे रखती है, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस ऑफ प्राइड होता है. Absolutely. एंड एवरीबडी टर्न्स एंड लुक्स कि अरे आप मोटरसाइकिल चलाते हो, Right. आप मोटरसाइकिल से ऑफिस आए हो, आप रोज आओगे. कौन सी मोटरसाइकिल, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, वो सारे डिस्कशन फिर वहां से स्टार्ट होते हैं. It's about, giving, for me again, biking is not just a machine. It is giving me a gender equality. When you ride a bike, people don't even ask you which bike you are riding. Yes, you rightly said they do ask which bike you are riding, but it's all about involvement of the second gender. So far हमें second gender बोला जाता था women को, but now when they talk about the RPM, when they talk about the CC of bike, it gives a feeling of involvement, equality. For me, it's a feeling of equality. Same table when men are talking about all machine technical things, and we are also talking the same. So for me, it's a gender equality more than talking about the colors of bike. It's more about involving us, giving us the same space as the other gender has. मेरे को भी कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि अरे लड़कियों को क्या ही पता होगा, तो मेरा जवाब उनको ये होता है कि आप लोगों को मेकअप के बारे में पता है? क्या आपको अलग अलग तरीके के कपड़ों के बारे में डिटेलिंग पता है? उन लोगों ने, वुमेन राइडर्स ने आज तक सीखा नहीं था, इसलिए उन्हें अब पता नहीं था. Absolutely. लेकिन अब वो सीख रहे हैं. तो मैं बहुत प्राउडली ये बात बोल सकता हूँ कि आज अकेडमी में कुछ ऐसे राइडर्स हैं जिनको शायद 80% मेल राइडर से ज़्यादा मोटरसाइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, राइडिंग टेक्निक्स के बारे में एक्सपीरियंस होगा, राइडिंग गियर की इन डेप्थ नॉलेज है. तो आप लोगों ने आज तक अपने आप को उस टॉपिक पे इन्वॉल्व नहीं किया था, इसलिए आपको नहीं आता था. ऐसा नहीं कि आप लोग केपेबल नहीं हो. Right. सेम तरह जिस तरह हमारे मेल काउंटर पार्ट्स ने कभी मेकअप की डिटेल्स में नहीं घुसे, कपड़ों की डिटेलिंग में नहीं घुसे, तो इसलिए उनको उस टॉपिक की जानकारी नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर वो घुसेंगे तो नहीं सीख सकते हैं. Agree. तो इसलिए नहीं किया था तो नहीं पता था, अब कर रहे हैं तो फिर कोई ना होने वाली बात ही नहीं है. No doubt about that. No doubt. अभी तक मोटरसाइकिल पे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा है, प्राउड एक्सपीरियंस क्या रहा है इतने 3 साल के राइडिंग एक्सपीरियंस? I don't know, every day, each moment I sit on my bike, each moment is a proud moment for me. मैं एक स्पेशल मोमेंट आपको नहीं बता पाऊंगी. However, सारे बाइकर्स के लिए तीर्थ स्थान लद्दाख. Yes, आपने अभी लद्दाख किया है कुछ दिनों पहले. Completed. वो जो मोमेंट था ना, जब उमलिंगा पास में, एंड मेरे लिए वो मोमेंट और ज़्यादा स्पेशल था. ऑल माय riders friends were all male. I was the only You're part female. of a male riding group. Only male riding group, and I was the only female there. I was holding back my emotions there. Top of that, it was a sense of achievement, happiness, proud feeling. So yes, that moment so far, if I remember. But as I said, every time I sit on my bike, it's a feeling of pride, it's a feeling, sense of achievement. Still. सेम फीलिंग. लद्दाख की जर्नी में सबसे एक्साइटिंग या सबसे मेमोरेबल दिन कौन सा रहा? कोई स्पेशल दिन था पूरी राइड में? As such, each and every day used to be special for me. Each and every day used to be an achievement day for me. However, as I said, each pass when we were crossing 17,000, then 18,000, then 19,000, and then you say the top of the world. Top of the world. That day, that moment was special. The best moment so far. So I guess I have made the memory in my mind, even if when I close my eyes, I guess this gonna be so far the best moment, because I'm sure that after that also I'm gonna create so many memories for me. It's just the journey has just started. लेकिन मुझे पता है वो moment को शायद कोई और पार नहीं कर पाएगा, because first moment is always special. मुझे अच्छी तरह याद है लद्दाख जाने से पहले हमारा डिस्कशन हो रहा था कि किस राइडिंग ग्रुप के साथ आपकी डेट्स मैच होती हैं, किसके साथ जाया जाए.
तो मैंने सजेशन दिया था कि किसी के साथ डेट्स मैच नहीं होती तो कोई And फर्क I नहीं still- पड़ता, and- सोलो चले जाओ आप. And I was ready. Literally, I had all plans in my head that how I'm gonna do that. मैं यहाँ से मनाली जाऊंगी, सारे plans ready थे. However, one of my friend, he called that you are going to Ladakh, and it was coincidence. Otherwise, all thanks to you. I was ready to make another history, solo ride to Ladakh. But yeah, I did that. और आपके पास जावा 42 है. Yes. हाउ वॉज द एक्सपीरियंस चूजिंग योर मोटरसाइकिल? आपने और भी कुछ मोटरसाइकिल टेस्ट ड्राइव करी. हाउ वॉज दैट शॉर्ट लिस्टिंग द बाइक दैट यू हैव? Okay, I was quite immature that time in terms of selecting the bikes and over enthusiastic, I would tell myself. Right? ओवर एंथू तो है, वो तो आई कैन सी. So it was just 2 days of classes. My brother had this Royal Enfield Thunderbird. Unfortunately, उस time पे Thunderbird बंद हो गया था, and then Meteor was coming. Meteor had a waiting of 6 months. 6 महीना मेरे लिए wait रूपा करना तो was रुक नहीं Rupa सकती. can't wait for 6 months. Oh God, without a bike. And then Java, I saw Java, and I did not even test drive other bikes, and I finalized it. It's just because I wanted to ride a bike. However, my journey with Java has been amazing. Not even a single problem. Spiti लेके गई, लद्दाख लद्दाख लेके लेके गई, बुरे से बुरा रास्ता, अच्छे से अच्छा रास्ता, पानी वाला रास्ता, पत्थर वाला रास्ता, पहाड़ी वाला रास्ता, नदी वाला रास्ता, झरने वाला रास्ता, रात वाला रास्ता, दिन वाला रास्ता. 30,000 किलोमीटर कर चुके हैं मोटरसाइकिल. 30,000 kilometer. And you know what the best part about the connection with this bike, as you were suggesting to other female riders, दूध लेने जाओ, हाँ. चावल लेने जाओ, Daily आटा लेने activity जाओ, करो. बाइक में जाओ, ऑफिस जाओ. So it's very handy, I need not to think twice before अपने बाइक निकाल. That is एक the दिन. way. So that's how I'm Routine riding. होना चाहिए. Routine is bike is like my second vehicle. It's like I'm using it as my scooty actually. Rupa, what I see with you is that after you got your motorcycle, you are now a more confident individual, personally as well as professionally. What would you like to say to all those girls, especially girls, who still think or are unable to do it and still think कि क्या मोटरसाइकिल उनको चलाना सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, जिनकी बहुत सारी एप्रीहेंशन है, भारी है, बड़ी है, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? Right. See, first of all, I'll talk about myself. Okay, before giving message to this such a big community, I'll talk about myself. What I used to be 3 years back, जब मैंने बाइक चलाना सिर्फ स्टार्ट ही किया था, और आज 2 चीज़ें हुई हैं. Of course, one thing you have already mentioned. I'm a confident personality because I know मेरे माइंड पे भी था, इतनी बड़ी बाइक, मैं तो दुबली पतली सी लड़की हूँ, फीमेल में तो पावर कम होती है मेल से, थोड़ा सा फिजिकली आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग, वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट. वो सारे तो थे ब्रेन में. एंड वंस यू ओवरकम दैट, यू राइड दैट बाइक, टफ टेरेन, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, दैट of course reflects on your personality. You become a more confident personality. This is one. The second part of the personality they did not mention, I'll mention this thing. I'm a happier personality today because I'm not dependent on for my happiness on anybody. ये generally होता है. It's not male female. हम लोग ना अपनी खुशियाँ किसी और में ढूंढते हैं. He should do this for me. मैं बाहर कॉफ़ी पीने जाना चाहती हूँ. He should take me for coffee. And if he does not take me for coffee out, then frustration start होती है. Nobody is doing anything for me. But why we are dependent on somebody else for our happiness? So my bike is my company. You want to have a coffee? Let's sit on my bike. Let's go for a coffee. So this what Problem solved. Problem solved. And now message to female community. You women are responsible for the happiness of your family. If you are not happy, how are you going to give happiness to the other people? So first of all, it's very important to fill your own glass of happiness. And believe me, this bike give you that dose of happiness to you. Your personality, your happiness, surely will it increase. And as far as weight of the bike concerned, vice versa, your weight, you guys are here now to take care of all these things. How the It's just technique about hai. technique, the right technique. You keep saying na, bike does not have a gender. Bike does not recognize male चला रहा है, female चला रहा है. It's just about getting the right technique. Once bike starts, उसका weight आपको feel नहीं होता है. आपका weight, आपको bike का weight feel ही नहीं होता है. You're just riding. It's just about skills.
आई एग्री. जस्ट वन मोमेंट दैट यू वन मोमेंट जब आपको बाइक के ऊपर वेट फील होता है, जब आपको साइड स्टैंड से ऊपर होता है, दैट्स द ओनली मोमेंट, दैट्स इट. उसके बाद बाइक का कोई भी वेट आपको कभी फील ही नहीं होता है. आप 200 किलो की बाइक चला रहे हो या 100 किलो की बाइक चला रहे हो, हार्डली मैटर्स. स्किल्स. In fact, what I see from you or what I hear from you is, if you are happier, you have a more positive outlook towards Absolutely. life. Yes. और अगर आप खुद ही खुश नहीं हो, आपका खुद ही आउटलुक पॉजिटिव नहीं है टुवर्ड्स लाइफ, तो आपके आसपास के लोग भी परेशानी और दुखी रहने वाले हैं. This is what happens now. And I it is see. not helping the family. Absolutely. I am responsible for happiness of my organization and happiness of my people, my family, my son, my husband, my mom, my dad, you know. एक रिलेशन से बहुत सारे रिलेशन जुड़े होते हैं. बिल्कुल. अगर आप खुश होते हो तो वो खुशी आप Transfer आगे होती पास है. करते हो, Transfer होती ट्रांसफर करते हो. I agree. एंड जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो वही कॉन्फिडेंस आप लोगों को पास ऑन करते हो. यू बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल. एंड यू नो नाउ व्हेन पीपल कम एंड टेल मी, मैम यू नो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस, यू नो यू आर डूइंग इट, आई विल ऑल्सो डू इट. जस्ट टू एड ऑन, माई सिस्टर हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू राइड अ बाइक. Very good. So even if one person, I need not to change the word, Amit sir. I don't want to change the word. नहीं, One बिल्कुल. person at a time. बिल्कुल. If I am able to do that change, to bring that change, my job is done. Job is done. I guess I did my part of. I totally agree with you. और लद्दाख और स्पीति के बाद अब अगली ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है रूपा मोटरसाइकिल के लिए? Again, all credit goes to you, Amit sir. Next time you have showed me this Australia video. Now that Australia video is playing in my mind. I like you, I hate you for giving me so many dreams. So now Australia goes in my mind day and night. Coastal ride, that photos I have seen. I don't know when I'll achieve, but I But will still, do it. Yeah. सोचेंगे तो होगा, करेंगे तो होगा, होगा, सोचेंगे होगा. नहीं तो कैसे होगा? Hoga. Within 3 years of learning a bike, sitting here and telling you, sir, मैंने स्पीति कर लिया, मैंने लद्दाख कर लिया, मैंने 30,000 किलोमीटर बाइक राइड कर लिया, मैंने सोलो राइड्स कर लिया, ग्रुप राइड्स भी कर लिया, ग्रुप राइड्स भी कर लिया, ऑल मेल कम्युनिटी के साथ कर लिया, और फीमेल कम्युनिटी के साथ कर लिया, सो कॉल्ड फास्ट राइडर के साथ कर लिया, सो कॉल्ड कॉन्फिडेंट राइडर के साथ कर लिया. सो यस. कोई फनी इंसिडेंट बताओ जो मोटरसाइकिल के साथ हुआ हो आपके साथ. फनी, आई गेस बहुत सारे फनी मोमेंट्स होते रहते हैं जो रिपीट होते हैं, बट आई विल शेयर वन फनीएस्ट मोमेंट जो कि मुझे हमेशा याद रहता है. फर्स्ट सोलो राइड ऑलवेज स्पेशल होती है जब आप फर्स्ट टाइम यू डिसाइड आई एम गोइंग फॉर अ सोलो राइड, ऑल पैक्ड कॉन्फिडेंट वुमन ऑन अ बाइक बट डज नॉट नो अबाउट द रास्ता. मेरठ एक्सप्रेस वे पे चढ़ गई मैडम. मुझे नहीं पता था मेरठ एक्सप्रेस वे में अलाउड नहीं है. वन थिंग, हाँ, तो मुझे ये नहीं पता था व्हेन आई वाज राइडिंग. अब ये सीखना है कि, या सीख लिया है कि यहाँ पे कई जगह बाइक्स भी अलाउड नहीं होती हैं. आपको वे कैसे ढूंढना है, रास्ता कैसे ढूंढना है, दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर. सो मेरठ एक्सप्रेस वे में चढ़ गई. पुलिस वाले भैया, एक नहीं दो. मैडम जी, नॉट मैडम जी, सॉरी, दैट टाइम दे वर नॉट अवेयर. मैंने फुल फेस हेलमेट एंड दे वर लाइक अगेन मस्ती में मैडम. एंड ही थॉट शायद पक्का ये मेरे साथ हमेशा होता है, कोई आवारा लड़का गाने सुनते हुए बाइक चला रहा है, तो आड़ा टेढ़ा चला रहा है. पुलिस वाला, हाँ इधर आ बे, तू इधर आ, साइड लगा. इट हैड हैपेंड विथ मी अर्लियर ऑल्सो. मेरे साथ पहले भी हो चुका था. मुझे पता था ना व्हाट वुड हैपन द मोमेंट आई ओपन माय हेलमेट, व्हाट वुड हैपन. आई वाज मेंटली प्रिपेयर एंड द मोमेंट आई ओपन माय, हाँ जी सर क्या हो गया, अरे तो छोरी लागे से. एंड देन मैडम जी इस पे तो बाइक चलाना अलाउड नहीं है. आई थॉट ठीक है सर, सॉरी गलती हो गई. बोलता मैडम जी चलान कटेगा. मैडम भी टोरे में, काट लो भैया चलान, क्या फर्क पड़ता है. यू नो मैं अपना पर्स वर्स निकालने लगी. कह रहा, ही वॉज लाइक यू नो लड़की बहुत कॉन्फिडेंट. कहता निकालो मैडम 20,000 रुपया. एंड द मोमेंट आई हर्ड 20,000, सर मैं तो पहली बार यहाँ सोलो राइड पे निकली हूँ, मुझे तो रास्ता ही नहीं पता है. कौन सी यू टर्न, वेस्ट यू टर्न, सर मैं यू टर्न ले लेती हूँ, मुझे यू टर्न आप बता दीजिए. एंड देन ही सेड मैडम यू टर्न आपको नहीं मिलेगा, जस्ट आप सीधे चले जाओ और आगे कोई भी बोले तो बोलना कि पीछे वाले सर ने समझा दिया है. स्टोरी डज नॉट एंड हियर. While coming back, I tried my level best not to take that expressway, but as destiny had already decided, I end up on that highway. Same road. On the way back. On the way back. Wow. Now, this time, एक change था.
आई वॉज मेंटली प्रिपेयर पुलिस वाले भैया कुछ होंगे, होगा। कुछ होगा एंड कुछ हुआ। सेम थिंग उस कट पे जब हम लोग ये कट लेते हैं वापस दिल्ली की तरफ, वहाँ पे पुलिस वाले जनरली खड़े रहते हैं एंड देन पुलिस वाला अगेन स्टॉप मी। मैंने कहा मॉर्निंग में यू टर्न वाला चल गया, अभी यू टर्न वाला नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। देयर आर टू वेज, ईदर रन और स्टॉप। आई डोंट नो, शायद वो पैनिक का था। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस थिंग दैट वी शुड डू इट, बट वो पैनिक स्टेट था मेरे लिए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। धूम धूम, एंड दैट वाज द मोमेंट आई लिव्ड माय धूम धूम मोमेंट। पीछे पीछे पुलिस वाले, आगे आगे मैं, एंड आई डोंट नो मैंने उनको कब छोड़ा, बिकॉज मैंने पीछे पलटने की फिर हिम्मत नहीं करी। एंड आई गेस दैट टाइम इज वाज स्कैरी, बट टुडे व्हेन आई शेयर विद यू इट सीम्स फनीयर। दोबारा नहीं करना। दोबारा नहीं करना। एज आई सेड, आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट इट वाज अ वी डोंट एडवाइज। No, never. Viewer ever. discretion is highly recommended. No, never ever. But that, sometimes it happens, you're not able to decide what to do. हाँ, वो कई बारी हो जाता है। Yes. बट आगे नहीं करना। Never. I learnt my message. मैं आपको immature rider की कहानियाँ सुना रही हूँ. This is an immature rider. Now I'm a more responsible rider. I know to follow all rules. द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं जाना है। किसी भी एक्सप्रेसवे पे, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे में जहाँ बाइक में क्रॉस लगाया हुआ नहीं जाना है। और आपने काफ़ी सारे मेल राइडर्स के साथ भी राइड किया है। Yes. काफ़ी हमारी एकेडमी और वुमेन राइडर्स के साथ भी राइड किया है। कोई डिफरेंस लगता है मेल बाइकर्स और वुमेन बाइकर्स में? डू यू फील इज देयर डिफरेंस? I have never realized this thing. जब भी मेल और फीमेल राइडर हम लोग साथ में राइड करते हैं, आई डोंट थिंक सो anybody can find a difference. He's a male, she's a female. I don't see any difference. Vice versa, I find a similarity in personality. They think alike. All biker community. I would not say it's a female or male. It's a biker community. Agreed. When we talk, when we sit down together, when we talk about our dreams, it's same. We talk about bikes, we talk about destination, we talk about happiness. So I never ever seen any difference in male or female rider. No. इनफैक्ट मैं तो आज ये भी बोलूँगा कि मैंने तो अब देखा है कि जैसे वुमेन राइडर्स बढ़ रहे हैं कम्युनिटी में, लॉट ऑफ मेल राइडर्स आर बीइंग वेरी इंक्लूसिव टू वेलकम देम, Yes. ऐड टू देयर ग्रुप्स, एंड देयर इज नो शेम राइडिंग विद अ वुमेन राइडर। No. पहले होता था, कंपटीशन होता है, शायद कभी कभी मैंने सुना, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो compete कर रहे हैं वुमेन राइडर्स। क्या था, वो वुमेन राइडर्स मेल राइडर्स के साथ compete कर रहे हैं। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। Now, as I said, हमारे शायद biker community is the only community जहाँ biker के लिए female term नहीं है. Correct me if I'm wrong. हाँ, It's called biker is called a biker. हाँ, कोई We don't say gender male specific biker or नहीं है। female biker, right? So I'm a live example. This time when I went to Ladakh, nobody treated me like a woman. Believe me, nobody was stopping for me. Nobody was giving me a special treatment. And that was And that my is happiness. what you want. That is what I want. I want equality. We want Absolutely. equality as a woman. As you started your discussion with saying, we don't want women to be exceptional हाँ, riders. No. favors नहीं चाहिए भाई। नहीं चाहिए. And this is what I got. There was a group of 15 of us, 14 male and 1 female. Not even a single time remember कोई बाइक को धक्का लगाने आया हो, या कि ठीक है मैडम गिर गई आपसे तो उठाने आ रहा हो, या चलो हम लोग आपका ये पास निकलवा देते हैं, आपसे नहीं होगा। एवरीबडी वाज राइडिंग विद अ कॉन्फिडेंस कि ठीक है, कभी रूपा वो निकाल आगे, लेगी। कभी मैं आगे, कभी वो पीछे, कभी मैं पीछे। सो इट्स ऑल इक्वालिटी. Yes, very inclusive. I think it is really nice that we have such mindset of people onto the ground. और what keeps you going, रूपा? कभी कभी शांति से तसल्ली से बैठ के सोचा है कि what keeps you going? 3 साल हो गए, मुझे आपकी एनर्जी में और एंथुजियाज्म में कोई कमी नहीं दिख रही किसी भी लिहाज से, बल्कि मुझे ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रहा है। राइट. उल्टा हो रहा है मुझसे. Energy level is increasing day by day. As I said ना, my glass of happiness. What I'm doing, see, हम सब लोग डिप्लीट करते हैं कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, ऑफिस लाइफ को मेंटेन करने में, ऑफिस पॉलिटिक्स मेंटेन करने में, या वेयर एवर थोड़ा थोड़ा एनर्जी डिप्लीट होता रहता है. बट व्हेन यू डू व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लव, वो आपका ग्लास रोज रिफिल हो जाता है. तो अगर आपका टैप ओपन है हैप्पीनेस का, so energy level automatically will increase, and it is increasing day by day. As I said, I'm
spreading that happiness in my office, in my family. My family is a happier place today. My office is a happier place today. My community is a happier, and overall, I am in a happier zone today. So I guess again, I'll give this credit to bike. I totally agree. आप खुश हो, Yes. आप पॉजिटिव हो टुवर्ड्स लाइफ, एंड दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स. Right. चाहे वो मोटरसाइकिलिंग से आए, चाहे वो किसी कहीं और से भी आते चीज हैं. से आपको Right, मिले, right. आप उसको छोड़ो नहीं. नहीं, जहाँ आप you find your source of happiness, not necessary. Today is a biker show. We are talking about bikes, but it's not just bikes. If your car is giving you happiness, now go and fill your glass with your car. If your trekking gives you the happiness, go get that happiness from trekking, mountains, beach, whatever gives you happiness. This is Whatever is your important. poison, You take just, it. but not that poison. हाँ, जो भी आपको Absolutely. जो भी आपको That's पुश right, करे, right. जो भी आपको मोटिवेट करे, जो भी आपको इंस्पायर करे, Inspire करे. just hang on to it. Find your source of happiness, especially women. You know, women कभी-कभी क्या होता है ना, वो अपनी happiness का ध्यान नहीं रखती है. And they keep thinking, you know, उसको खुश रखना, उसको खुश रखना, उसको खुश रखना is my responsibility. Yes, it is a responsibility. But to keep yourself happy is also your responsibility. So कहीं ना कहीं अभी especially in Indian society, women forget to take care of themselves. Women forget to refill their glass of happiness. So my message to all female community outside there, please refill your glass of happiness, and you have a source, bike. I totally agree Because with you it's on that. wings. The moment you sit on bike ना, car, I know कई लोग car enthusiast होंगे. With all due respect, I drive a Thar. Thar equally gives me that high. But bike में क्या होता है ना, that connection with the environment, nature. जब आप open बैठे You are होते one हो, with the nature, kind one of. with the nature. You feel it. You feel it. वो शायद मोटरसाइकिलिंग इज ऑल अबाउट, जो इनफैक्ट ग्राउंड पे भी जब ट्रेनिंग के लिए बिगिनर्स आते हैं, सो डे वन व्हाट आई टेल देम इज मोटरसाइकिल इज ऑल अबाउट फील. यू फील द वाइब्रेशन, यू फील द स्पीड, यू फील a gear changing, you hear the throttle, you see the speedometer needle going up or down. Motorcycling is totally feel. It's how you be one with the machine and how you enjoy it. right. And you know one more thing, it looks like a human actually. हाँ, It बिल्कुल. looks like a human because बिल्कुल, sizes, बिल्कुल. you know, car को आप कभी imagine नहीं कर सकते नहीं as a कर human, सकते हैं. but bike perfect size, Fits you has well. a body, Fits you know, well. eyes, you know, हाँ. if you can imagine, if you want to imagine, it looks like a human, your friend. So yeah, the connection I feel with bikes, two-wheeler, it's at different level. आई टोटली एग्री विद यू ऑन दैट. और कोई ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो बहुत यूनिक रहा हो आज तक की जर्नी में, कभी बाइक खराब हो गई हो एंड यू गॉट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, पंचर हुआ हो, या एनी सिचुएशन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? 2-3 अभी लद्दाख में ही हुआ था ना. अभी लद्दाख में एक तो मेरे खारदुंगला में बाइक गिरी थी. अच्छा, बाइक का लीवर टूट गया था, हेलमेट नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. हेलमेट नहीं था? हेलमेट का वो वाइजर टूट गया था मेरा. अच्छा. सो पूरा लद्दाख हवा मैंने लग रही होगी बिना अंदर. वाइजर के, आई टेल यू, जब 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे मेरे वहाँ पे. एक गटर, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट थिंग अगेन all started with my over enthusiasm, right? The moment I entered Ladakh, I was in a different zone. Okay, I saw Ladakh, open sky, as if LED चल रहा है मेरे सामने. लाइट ही मैजिकल है. Magical. And I kept my helmet बाइक के ऊपर रखा. It was windy. वो हेलमेट नीचे गिरा और उसका वाइजर टूट गया. Now वो फिक्स हो in नहीं सकता. Ladakh, I'm without a वाइजर. वाइजर. शाम का टाइम था, ठीक है, कैसे कैसे करके हम लोगों ने नुब्रा वैली तक तो चले गए. ओपन में गॉगल लगा के शाम के टाइम पे नुब्रा वैली तक चले गए. उसके बाद आपको हेलमेट कहाँ मिलेगा या नया वाइजर कहाँ मिलेगा? सो हम लोगों ने ग्रॉसरी शॉप से एक टेप खरीदा. लोगों ने आइडिया दिया कि आप टेप से उसको कर लो, एंड देन यू नो आपको बस इतना डिफरेंस आएगा कि आपको बार बार वो ओपन खोल नहीं पड़ सब. ठीक है, ओके फाइन. एंड देन हॉरर स्टोरी स्टार्टेड. अच्छा. बिकॉज वो मैंने कभी रियलाइज नहीं किया. नंबर 1, आप अपनी गॉगल नहीं पहन सकते, और मेरा ट्रांसपेरेंट था. आप गॉगल नहीं पहन सकते तो आइस, आप पूरा सन लाइट आपके उसमें है. प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 2, व्हेन यू ब्रीथ, फॉग हो जाता है. जब हम खरदुंगला पहुंचे ऊपर, सो इट स्टार्टेड स्नोफॉल होना शुरू हो गया वहाँ पे.
अब जब मैं ऊपर जा रही थी खारदुंगला में, जब ऊपर की तरफ हम लोग चढ़ रहे थे, तो ऑफ कोर्स ब्रीदिंग इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं आपको, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड वो स्नोफॉल हो रहा था तो मेरे हेलमेट के ऊपर गिर गया वो। अब एक हाथ से मैं बाइक चला रही हूँ और एक हाथ से आई एम जस्ट साफ कर कवरिंग रही इट, एंड व्हेन आई एम ब्रीदिंग वो पूरा फॉग है, आई कुडंट सी एनीथिंग। आगे से ट्रक आ रहा है, और सड़क तो छोटी है वो। सड़क बहुत छोटी है, आगे से ट्रक आ रहा था, मुझे वाइजर पे कुछ नहीं दिख रहा था, और फर्स्ट फॉल मेरा खारदुंगला में हुआ। आगे से ट्रक आ रहा था, आई कुडंट ब्रीथ, एंड दैट टाइम वहाँ पे बॉडी का एनर्जी ना आपका हाफ हो जाता है, वट एवर योर Altitude की बाइक वजह का से। एल्टीट्यूड की वजह से आपका बाइक का भी और आपका खुद का एनर्जी भी हाफ हो जाता है, एंड आई कुडंट ब्रीथ। एंड देन ट्रक वाला उतरा भैया, और भैया से मैंने बोला, आई कुडंट स्पीक क्योंकि ना मेरे ग्रुप का कोई आगे, एज आई सेट यू नो, इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ कि लड़की आ रही है रुक जाओ, नो, ऑल राइडिंग इन स्पीड। देन ट्रक वाले भैया बोले, मैडम जी ठीक हो? मैं कह रही बाइक उठाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं उठाना, इस बाइक को उठाओ, और बाइक का हाफ लीवर टूट गया था वहाँ पे। क्लच First, या ब्रेक? उसका क्लच का, ठीक है। क्लच का हाफ लीवर टूट गया था। ठीक है। नाउ आपका एक वाइजर नहीं है और हाफ क्लच नहीं है, नंबर वन। ऑफ कोर्स फिर डिफिकल्ट हो जाता है बाइक चलाना आपके लिए। सेम स्टोरी हैपेंड इन गाटा लूप्स। गाटा लूप्स जो पिन बोर्ड्स हैं बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल एकदम से आपका रोड घूमता है, और उसमें रोड और पतली है। एंड द मोमेंट आई गाटा लूप्स की बहुत स्टोरी सुनी थी, डिफिकल्ट है, एंड द मोमेंट आई एंटर्ड गाटा लूप्स आई सॉ अ ट्रक पूरा उल्टा, टायर उसके ऊपर और Turtle ट्रक। हुआ। दैट्स हाउ आई एंटर्ड गाटा लूप। गाटा लूप। एंड गाटा लूप में ना इतनी धूल थी दैट अगेन वो स्नोफॉल से कम नहीं था। सेम थिंग हैपेंड गाटा लूप में, अगेन सेम थिंग हैपेंड। धूल से आगे वाइजर पूरा फॉग ब्लॉक दिख नहीं रहा। तो इसमें क्या होता है, पैनिक होता है आपको, काफ़ी पैनिक हो जाता है। तो यू डोंट हैव, सो बेस्ट इज टू लीव योर बाइक, बिकॉज इफ यू कीप राइडिंग, आप, मैंने फर्स्ट गियर में अपना बाइक छोड़ दिया नो मैटर, और वो अगेन सेकंड फॉल था। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ट्रक वाले के सामने में वो बाइक जाके, अगर मैंने शायद वो बाइक राइड किया होता तो मैंने ट्रक को हिट कर दिया, बट आई कुडंट सी इट। बेस्ट आई थॉट मेरी, क्योंकि बाइक फर्स्ट गियर में है तो आई शुड लीव माई बाइक, दैट्स द बेस्ट, सो दैट आई शुड ओपन माई हेलमेट। So what I want to say is not a rosy picture when you ride a bike. Such kind of difficult situation Absolutely. will come. However, ये आपको ना लाइफ होती है, लाइफ भी ऐसी होती है, लाइफ कभी स्मूथ नहीं चलती है। अगर कोई बोलता है मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा बोल रहा है, चल रहा है, आई एम द हैप्पीएस्ट सोल, झूठ बोल रहे हैं। सबकी लाइफ में इश्यूज है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं। नाउ हाउ यू टैकल द चैलेंजेस, सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हो, दैट्स द बेस्ट पार्ट। दैट्स मेक्स यू अ बेस्ट ह्यूमन, अ गुड ह्यूमन, अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो ना, यही आपका आगे आने वाले साल कैसे होंगे वो डिपेंड करता है सिचुएशन हैंडलिंग पे। अगर शायद पैनिक करके मैं वहाँ पे बोलती है मुझे बाइक नहीं चलानी है, मेरा वाइजर नहीं है, मैं गाटा लूप्स है, डिफ़िकल्ट है, शायद इट वॉज अ मैसेज फॉर मी कि मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आई विल क्विट। बट हाउएवर आई थॉट ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मुंह पे धूल आएगी, मैंने वो वाइजर हटा दिया एंड आई केप्ट राइडिंग। सो यू लिव टुडे एंड यू फाइट टुमारो। यस, सो दैट व्हाट यू नो, एज आई सेड, आई कीप टेलिंग यू दैट, यू नो, जब मैं अपना कनेक्ट कर रही हूँ बाइक को और लाइफ को, दोनों सेम है। हाँ, बाइक और लाइफ बिल्कुल। ना बिल्कुल सेम है। बिल्कुल है। बाइक चला के हैप्पीनेस मिलता है, लाइफ को आगे बढ़ा के हैप्पीनेस मिलता है। बाइक चला के प्रॉब्लम्स भी आती है, लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बाइक चला के आप और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनते हो, लाइफ में आगे बढ़ के आप कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस आता है कॉन्फिडेंस। सो मोर लेस सेम है, बिल्कुल सेम है। लाइफ का एक्सपीरियंस आपको लेना है, बाइक चलाइए, बिल्कुल दोनों सेम है। इनफैक्ट ग्राउंड पे भी जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम यही बोलते हैं कि मोटरसाइकिलिंग इज अ लाइफ स्किल, एंड दे आर लाइक ऐसा क्यों सर? तो फिर उनको यही चीज़ें समझानी पड़ती हैं कि आप जब राइड पे भी जाओगे, आप नेविगेशन की वजह से गलत रास्ता ले सकते हो, आप ग्रुप में जा रहे हो लेकिन फिर भी आप पीछे छूट सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाए और आप किसी अपने ग्रुप मेंबर से कम्युनिकेट ना कर पाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे द शो मस्ट गो ऑन। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, you have to reach your destination. वहाँ पे you cannot just sit there and wait for assistance. You have to work a way out. Right. You have to keep on moving. That is life.
चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप होम मेकर हो, चैलेंजेस हर जगह हैं, कहाँ नहीं है, लेकिन उनको फेस करना पड़ेगा, उनको ओवरकम करना पड़ेगा, एंड द शो मस्ट गो ऑन. Absolutely. At the end of the day, that is what counts. Yes. And that is what makes you a better individual. After every experience, after every ride, after every difficult challenge, you come out more confident, ready to take on the world. कि हाँ ठीक है, आने दो, we'll manage, we'll work something out. Sooner or later it will happen. And difficult situation आना लाइफ में बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. Difficult situation बाइक राइडिंग में आना ज़रूरी है. Otherwise you'll not become a good biker. I agree. You'll not become a good biker. अगर आप मुझे पूछो, रूपा अभी तो कोई प्रॉब्लम आया है आपका बाइक जर्नी में, ना से नहीं अमित सर अभी तक तो कोई नहीं, दैट मीन्स आई एम नॉट अ गुड बाइकर. I agree. अगर मेरी लाइफ में वो पुलिस वाला इंसिडेंस नहीं हुआ होता, मुझे कभी नहीं पता चलता कि एक्सप्रेसवे में जाने से प्रॉब्लम आ सकती है. शायद अगर मैं लद्दाख में वो गाटा लूप्स के सामने गिरी नहीं होती तो मेरी लाइफ में कभी मुझे ये लेसन ही नहीं मिलता कि वाइजर इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए लाइफ में. सो ईच एंड एवरी मोमेंट इज टीचिंग यू समथिंग एंड मेकिंग यू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ and ready to tackle the challenges of life, because in the end of the day it's not bike, it's life that you have to face. I totally agree. और कई दफ़ा on the ground as a trainer, I want to make things difficult for my students, assuming that they will come out richer from that experience, and intentionally there have been instances जहाँ पे एक छोटी प्रॉब्लम में वो लोग आए तो आई डिड नॉट सेंड देम असिस्टेंस, एक्सपेक्टिंग दैट दे विल लर्न टू डील विद इट. एंड whenever this kind of thing happen to them in the future, they will understand कि we'll have to deal with that. हर जगह हैंड होल्डिंग, हर जगह असिस्टेंस देना मैं ठीक नहीं समझता. कई दफ़ा कई बार ट्रेनिंग में भी, राइड्स में भी मैं इंडिपेंडेंट छोड़ देता हूँ उनको कि वो सीखें खुद चीज़ों से डील करना, ताकि वो आफ्टर द एक्सपीरियंस इट इज़ ओवर दे कम आउट एज स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल. जो मेरे को लगता है एक ट्रेनर की जिम्मेदारी है काफ़ी हद तक. कई दफ़ा मुझे ब्लेम भी किया गया है कि नहीं आप कर सकते थे तो आपने क्यों असिस्ट नहीं किया. तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ. कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते, बट आई ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि एज अ ट्रेनर माई जॉब इज टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे विल हैव टू डील विद इट, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो. सो दैट इज वाई स्टिक टू माई गन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स कि हाँ थिंग्स विल गो डाउन, बट इट इज यू हु हैज टू हैव दैट माइंड सेट दैट आई हैव टू कीप ऑन गोइंग. और मैं जब आप जैसे राइडर्स को देखता हूँ जो 3 साल से मल्टीपल राइड्स कर चुके हैं और आज वही सेम चेन ऑफ थॉट के साथ हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ दिस इज व्हाट द वे अ राइडर शुड थिंक. यू कैन नॉट गिव अप, चाहे वाइजर टूटे, चाहे लीवर टूटे, यू हैव टू कम बैक होम इररिस्पेक्टिव. यू हैव टू मेक इट वर्क समहाउ. इनफैक्ट पीछे किसी राइड पे एक राइडर का लीवर टूटा था तो हमने वहां पे चम्मच बांधा था काट के, पुष्पा का उसके बीच चम्मच बांधा कि भाई यू हैव टू डू इट, नन टू वेज अबाउट इट, यू जस्ट कांट लीव योर बाइक हियर एंड गो. तो यू हैव टू वर्क थिंग्स आउट, यू हैव टू मेक इट हैपन, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग, एंड the bottom line is the show must go on, and that is how we become better individuals at the end of the day. I witness to that. I've seen जब आप लोगों को छोड़ देते हो. हाँ, मैं कई बार इंटेंशनली छोड़ देता हूँ. कुछ इश्यूज भी आए हैं, आप हेल्प कर सकते थे. बट यू नो एज अ मॉम जब हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो समटाइम वी हैव टू बी टफर. हर बार अगर बच्चा गिरेगा और आप उसे उठाने के लिए जाओगे ना तो बच्चा शायद कभी खुद से उठना नहीं सीखेगा. आई गेस यू अंडरस्टैंड एज अ ट्रेनर दिस थिंग, एंड इट्स जस्ट नॉट bike riding skills that you're teaching them, you are teaching them the life skills, how to handle tough situations. आएगी बाइक लेके जब रोड पे निकलोगे तो इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे. एट दैट टाइम अमित सैनी विल नॉट बी देयर टू हैंडल यू. बैकअप की तरह अमित सैनी नहीं आएगा उस टाइम पे. यू आर द वन यू नीड टू हैंडल, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन दैट यू आर गिविंग to all the riders, to all the trainees who want to learn the bikes. So, and that is the way it should be. अगर बच्चे का हाथ पकड़ के ही चलाना है तो कभी इंडिपेंडेंट नहीं चल सकता, नहीं सीख पाएगा. तो हमें समझना पड़ेगा कि बच्चा गिरेगा,
वी हैव टू इग्नोर इट. वो उठेगा, जब वो देखेगा उसे असिस्टेंस नहीं मिल रही तो वो उठेगा एंड ही विल कैरी ऑन एंड ही विल अंडरस्टैंड दिस इज लाइफ. As I said, that you are doing a great job. You are empowering the entire country. When I say country, of course, this is a chain reaction. I know that's very small portion as of now you have touched, but with this small portion, you are making a chain. I know. A chain, human chain that you have already started to create, and the journey had just started. It's just, I guess, how many years your academy is here? We started this December 2018 and we can very proudly say that we have trained 2000 women till now. Wow. Just crossed the number of 2000 and we are trying to reach a lot many more of the community. क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. You have to think about it from that perspective. और वही वाली बात कि the show must go on. आज हम 10 कदम चले हैं, अब आगे 100 कदम चलेंगे, फिर उसके बाद 1000 कदम चलेंगे, लेकिन the show must go on. You're doing a wonderful job, and congratulations on this achievement. Wishing you best of luck, and I'm sure that you are going to touch a larger part of community. It's just a starting. Today it is 2000, and I'm sure that within next few years you probably say that we have trained more than 20,000, 30,000 women. The day is not far away now. The day women, the way हमारी women community is increasing day by day, and I'm also proud, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ अब मुझे दिखने लगी हैं, and somehow I feel a connection. ये कहीं ना कहीं अमित सर से ज़रूर connected होंगी, जुड़ी हुई होंगी. तो it's a very proud feeling when you see another strong woman out there. So you are doing a wonderful job. Thank you so much for making our community stronger day by day. That's all I want to say. Rupa, it was a pleasure to have you. And it is always a pleasure to have people who came initially to the academy when the idea was in a very nascent stage, when we were still thinking, are we doing the right thing to do? But today, after seeing Rupa, who's been riding for 3 years, done 30,000 kilometers, done Ladakh, Spiti, and been riding all over the place, it is such a proud moment for us. Godspeed and carrying on, and I will see you soon after you complete your Australia ride. Yes, I will. You Hope have to given see you me soon. Yeah, thank you so much. Once you complete your Australia ride, we'll see you here again. You have given me this dream, and I'll make sure once I achieve this dream, I'll talk to you for the same. Sure. Thank you. Thank you so much. Thank you. You are always welcome. Yes.